a startling update to the tragic Balanga minor burn case, Odisha police declared that their investigation has revealed no evidence of involvement of any third party. This announcement follows the death of the minor victim at AIIMS Delhi, where she had been receiving advanced treatment after suffering 75% burn injuries. According to reports, the minor girl was allegedly set ablaze on the 19th of July near Bayabar village in Puri's Balanga block. Initially admitted to AIIMS Bhubaneswar, she was later airlifted to AIIMS Delhi. Despite multiple surgeries and critical care, she succumbed to her injuries on Saturday. किसी से मेरा उंगली उठाना चाहता नहीं हूँ। सब हैं आम नागरिक हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, मेरी लड़की के लिए सब दुआ प्रार्थना किए हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, मेरे नसीब में मेरी बेटी नहीं है। मैंने आपका ना इनका किसी का दोष देना चाहता नहीं। कृपया करके राजनीति पॉलिटिकल या कोई सा इशू दिमाग में मेरी फैमिली के ऊपर आप न दो, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग से। कॉल किया था, बात हुआ कि लड़की बोल रही है तरबूज खाने के लिए। मेरी बातचीत ना, हाँ सब ठीक है। दोपहर को सडन बोले कि उसका को तबीयत थोड़ा क्या बोले जल रहा है और कुछ तकलीफ हो रहा है और उसको वेंटिलेटर लगा है। तो हम लोग का मतलब दिल वहीं पे थोड़ा मायूस हो गया कि वेंटिलेटर लगा है, क्या होगा क्या नहीं। क्या ना वेंटिलेटर तो मुझे लगता है आपको सबको पता है। तो शाम को बोले कि नहीं बच्ची और नहीं है। बातचीत के दौरान हमको उम्मीद था कि बच्चा आएगी, टाइम लगेगा महीना 2 महीना, लेकिन बच्चा आएगी। Heartbroken family members there speaking to media, urging no politicization of the matter, saying that I hold her father there, saying that I hold no one responsible. I just want everyone to pray for my daughter who's no more with us. The Odisha police, through an official statement on X, urged public to remain sensitive. The investigation was conducted with utmost sincerity and is nearing completion, read the official statement. So far, no evidence suggests any third-party involvement. This is what the police said in a statement. Now, questions loom, viewers. Who burned the victim? How did she suffer injuries? And how many more days before the truth comes out? Reactions are flowing in, expressing sadness and anguish as well as outrage. Chief Minister Mohan Maji expressed his condolences, saying the government and medical teams did everything possible. Odisha Leader of Opposition and former Chief Minister Naveen Patnaik expressed his condolences with a post on X in which he expressed his anguish and sadness at her passing away. There, in fact, Odisha Chief Minister Naveen Patnaik saying, "My condolences for the young girl and prayers are with the family members in the hour of grief. May God give the family members strength to bear this irreparable loss." Odisha Congress Chief Bhakta Charan Das also reacted on this unfortunate incident. He in fact termed the case a suspicious one and questioned some of the procedures adopted by those dealing with it. हम उनकी अमर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, और उनकी परिवारजनों को संवेदना जताते हैं। ईश्वर उनको धैर्य दे, इस घड़ी में अब इतना बड़ा नुकसान को सहने की क्षमता दें। लेकिन उसके साथ साथ आज 14 दिन हो गया, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, अपराधी पकड़े नहीं गए। ऐसा क्यों हुआ? उड़ीसा में बार बार महिलाओं के प्रति बलात्कार हो रहा है। इससे भी और भयानक केस फकीर मोहन कॉलेज में हुआ था बालेश्वर के। खुद को जला दिए थे, आत्महत्या किए थे, ये कहा जाता है, लेकिन पेट्रोल कौन लाया, कौन आग लगाया, ये सारे प्रश्न अपनी जगह पर है। The assertion that no additional individuals are involved has ignited a firestorm of public criticism and skepticism. Justice delayed is justice denied.
ये जो है सिर्फ एक न्याय की पुकार नहीं होनी चाहिए, अब एक जन आंदोलन में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि हम ये इस तरह के हादसे बार बार देख रहे हैं। उड़ीसा में अगर आप देखिए पिछले 2 महीने में 2 हादसे हो चुके हैं। सरकार की चुप्पी, अभी तक परिवार को किसी तरीके का कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं, जो कि खुद उड़ीसा से हैं, वो इस मामले में सख्त कार्यवाही के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालें। और जो मैंने जन आंदोलन की बात करी, पूरे देश में अगर आप देखेंगे बेटियां हमारी सेफ नहीं हैं। 15 दिन हो गया, सरकार का हाथ खाली के खाली रह गया। सरकार बस बात करने के लिए तत्पर है कि हम कर रहे हैं, मगर 4 बार कोई अगर स्टेटमेंट देने के बाद में 15 दिन के बाद में आपका हाथ खाली क्यों है? ओडिशा में क्या चल रहा है? आपने सौम्यश्री, ये तो बड़ंगा का केस है जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी व्यथा व्यक्त किया है, लज्जा बोल के बोला है। आप देखिए सौम्यश्री का केस देखिए, FM कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज सौम्यश्री अपने आप को पेट्रोल डाल के जला दी। मैं वही बोल रही हूँ, जिसकी आजकल जिन लड़कियों की डोली उठनी चाहिए ना, उन लोगों की अर्थी उठ रही है। ये दुखद घटना है। आज तक वो अपराधी जो ये घटना घटा है, उनको पुलिस प्रशासन भी पकड़ नहीं पाए। तो सरकार का ये संपूर्ण फेल्योर है। गवर्नमेंट उनके फैमिली को कंपेंसेशन 5 करोड़ रुपया सिर्फ मिनिमम देना चाहिए। I think it's extremely shocking, it's extremely traumatic, it's extremely painful to know, as per the information given by the CM of Odisha, that the victim who was battling the burn injuries that were perpetuated on her by dousing of petrol from Balanga in Puri has sadly passed away. It's an extremely painful moment. We are just rushing to AIIMS Delhi at this point of time, our honorable members of parliament from Biju Janata Dal. And it just goes to show the pain, the trauma that she suffered, primarily because she had no protection. And we have no words, not enough words, to actually offer our condolences and our pain and express our anguish at her passing away. Let me quickly go across to my colleague Shubrat Das. She joins me over the phone line with more details on the same. Shubrat, आप सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें अपडेट्स दे रहे हैं। हमें बताइए अभी लेटेस्ट क्या है। हमने इनके जो विक्टिम है उनके पिता और उनके भाई का स्टेटमेंट सुना। वो हाथ जोड़ करके सबको बस यही बोल रहे हैं कि इस मैटर को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। क्या वो हार मान चुके हैं? क्या उन्हें ये भरोसा हो गया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं जा रही? परहैप्स देखिए, जो विक्टिम का कल जो डेथ हुई थी उसके बाद उसका पिताजी ने एक वीडियो जारी करके ये बोल रहे थे कि डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किए उसमें वो संतुष्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि वो बच नहीं पाई। लेकिन सरकार सभी तरफ जितना भी हो पाए वो हेल्प के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो पुलिस की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो बोल रहे कि इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार जितने हेल्प के मेडिकल ट्रीटमेंट उसके लिए वो थैंकफुल भी कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिसाइज नहीं करने के लिए वो निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस ने भी कल एक्स पे पोस्ट करके ये भी बोले थे कि जो भी कोई भी एंगल उनको जो नहीं दिख रहा है, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी या कोई किसके द्वारा ऐसा हैपनिंग हुआ है, इन्वेस्टिगेशन तो हो जो एकदम कंक्लूजन पे है। अभी ये हमें वेट करना चाहिए कि पुलिस ऑफिशियली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या साझा करेगी, इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन क्या निकला, कैसे हुआ। अभी सिर्फ वेट है पुलिस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उजागर करेगी। अच्छा शुभ्रत, पुलिस कह रही है कि किसी थर्ड पार्टी की किसी भी तरह से कोई भी इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आ रही है, कोई सबूत नहीं मिल पा रहा, तो अब इन्वेस्टिगेशन किन लाइंस पे हो रही है? जी देखिए, पुलिस जैसे बोला कि कोई भी एंगल थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अभी तक सभी वेट कर रहे हैं कि पुलिस क्या उसके कंक्लूजन में क्या निकला है। क्योंकि अभी सब पॉलिटिकल पार्टी हो या कॉमन पीपुल भी वही पुलिस का स्टेटमेंट क्या रहेगा, पुलिस का कंक्लूजन क्या रहेगा, सब वेट करके अभी है। क्योंकि अभी पुलिस ने बोल दिया कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर क्या है, तो इसके ऊपर सभी का नजर है। जैसे भी पुलिस 2-4 घंटे हो या 1-2 दिन के अंदर ही अभी वो साझा कर सकता है उनका कंक्लूजन क्या निकला, किस एंगल पे ये हादसा हुआ था। कुछ अभी तक अपडेट नहीं मिल पाए। पुलिस जैसे साझा करेगा हम व्यूअर का शेयर कर पाएंगे।
ऑलराइट, और हमें ये भी बताइए शुभ्रत की, क्या पुलिस ने अब तक कोई सीक्वेंस और इवेंट्स शेयर किया है, जैसे कि एग्जैक्टली ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, किस टाइम पर हुआ, विक्टिम किस कंडीशन में मिली, क्या विक्टिम से किसी भी तरीके की कोई भी बात हो सकी? 19 तारीख को जब ये हादसा घटित हुआ था तो फिर लोकल पुलिस अथॉरिटी से लेकर डीआईजी डीजीपी तक फील्ड पे गए, साइंटिफिक टीम भी गए थे, सीसीटीवी को भी खंगाला, लेकिन जो भी उनके पास इन्वेस्टिगेशन है, उनके पास ही डिटेल्स मटेरियल है, तो वो किस एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके पास ही डिटेल डाटा है, क्योंकि पीड़ित अभी डेथ हो चुकी है और पिताजी ऐसे बोलना कि सरकार की तरफ से सभी हेल्प मिला उनको, मेडिकल ट्रीटमेंट हो या एयर एम्बुलेंस में ले जाने के लिए, वो पिताजी बोल रहे सब हेल्पफुल मिला, ऑफिशियल जो होना चाहिए था, लेकिन पुलिस अभी बोल रहे कि कोई थर्ड पार्टी का हाथ नहीं है। तो अभी सिर्फ हमें वेट करना पड़ेगा कि पुलिस क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवील करेगा, एग्जैक्टली क्या हैपनिंग हुआ था डे 1 से लेकर कल तक। अभी हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो फिर हम शेयर कर पाएंगे।